the registration of uh, under the GST. Okay, so who is required to register, when it's going to be required to be registered, and there are lots of confusion about the limit uh, for registration under the GST. Okay, so the first thing we have to consider need and advantage of the registration. रजिस्ट्रेशन क्यों करना है और रजिस्टर्ड किया तो क्या फायदा है. सो फर्स्ट इज ऑफिशियल रिकॉग्नाइजेशन टू द पर्सन सप्लायर ऑफ द गुड्स और सर्विसेज और बोथ. सबसे पहला फायदा है ही इज गेट द ऑफिशियल रिकॉग्नाइजेशन ऑफ द supplier. Only registered supplier authorized to collect tax from the customer. मैंने तुमको पहले भी बताया था, जिसके पास जीएसटी नंबर नहीं है, he is or that dealer is not allowed to uh, deduct charge the जीएसटी. जीएसटी वो चार्ज नहीं कर सकता अगर उसके पास जीएसटी नंबर नहीं है. नेक्स्ट, the supplier may pass on credit to in respect of the taxes paid on the goods or services or both supplied to the customer. Pass of the क्रेडिट, ये हम इनपुट टैक्स क्रेडिट में आराम, हाँ ऑलरेडी इनपुट टैक्स क्रेडिट हो गया है तुम्हारा. सो यू ऑलरेडी नोस दैट how to pay the tax after a deduction of already paid tax to supplier. Already अगर मैंने supplier को tax paid किया है तो गवर्नमेंट को मैं वो जो नेट टैक्स पेबल है वही दूंगा. आई एम नॉट गोइंग टू बी पे द फुल टैक्स विच इज कलेक्टेड फ्रॉम द customer or at the time of sale or service provided. Okay, the next is the supplier may claim and utilize input tax credit for the tax paid towards the discharge of his liability for the tax due on supply of goods or services or both. input tax credit वो claim कर सकता है. Next, the registration established a supply chain at the national level with the seamless flow of the input tax credit from the suppliers to the consumer. मतलब all over nation ये tax credit pass on हो सकता है only and only if every supplier is registered under the GST. द जीएसटी का चेन कब टूट जाएगा अगर कोई भी सप्लायर रजिस्टर्ड नहीं है. इट मीन्स दैट if the customer is paid the GST, it's not going to be reached to government if any one of the channel is not registered. Next, liability to be registered. Who are liable to register? So first is every person who is registered under the existing indirect law being submit in GST. इसका मतलब जो पहले टैक्सेस थे जिसमें लोग ऑलरेडी रजिस्टर्ड थे, तो पहले कौन से टैक्सेस थे? as we know, there are lots of tax before the GST. GST के पहले बहुत सारे टैक्स थे, वो सब टैक्स को मिला के एक टैक्स बना दिया GST. तो फॉर एग्जांपल वैट, सर्विस टैक्स, एक्साइज, ये सब चीजों के entry tax, luxurious tax. So these all are the different types of tax. तो ये सारे टैक्स के अंडर जो भी रजिस्टर्ड डीलर थे, ऑलरेडी रजिस्टर्ड थे, मतलब इफ आई एम हैविंग द वैट नंबर, अगर मेरे पास सर्विस टैक्स नंबर था, सो इट्स कंपल्सरी फॉर मी टू रजिस्टर्ड अंडर द GST. Next is every person whose aggregate turnover of taxable supply of goods or services or both exceed the threshold limit during the financial year. मतलब जो भी डीलर का और जो भी बिजनेसमैन का
जो भी बिजनेसमैन का थ्रेशोल्ड लिमिट मतलब उसका टर्नओवर एक पर्टिकुलर लिमिट के ऊपर हो गया तो ही required to register compulsorily. And next one is the voluntary registration permitted even if no liability. It means that अगर मेरा टर्न ओवर कंप्लीट नहीं हुआ है, थ्रेशोल्ड लिमिट पार नहीं किया है, फिर भी अगर मैं वॉलंटरीली रजिस्टर करना चाहता हूँ, then it's allowed. So now very important thing, थ्रेशोल्ड लिमिट के बारे में बहुत से मिसकॉन्सेप्ट है. स्टिल पीपल आर सेइंग इट्स 20 lakhs, some are saying 40 lakhs. Okay, so look, अर्लियर लिमिट, पहले जो रजिस्ट्रेशन के लिए लिमिट था, दैट इज द 20 lakhs. Okay, for normal category of states and rupees 10 lakh for the special category of states. Okay, up to कहाँ तक? 31st March 2019 तक. But as you know, your syllabus is for the असेसमेंट ईयर 2020-21, मतलब 1/4/2019 के बाद जो भी अमेंडमेंट आई है वो सब तुमको एप्लीकेबल होगी. सो व्हाट इज द थ्रेशोल्ड लिमिट राइट नाउ फॉर द रजिस्ट्रेशन? सो exceeding rupees 40 lakhs for the normal category and exceeding rupees 20 lakhs for the special category of states. स्पेशल कैटेगरीज ऑफ स्टेट्स के नाम मैं तुमको बाद में बताऊंगा कि जो स्टेट्स में लिमिट कम है, दीज आर द मेन स्टेट ऑफ असम, मिजोरम एक्सेट्रा, विच आर द not much developed states or the very small states of India where the businessman is not able to reach the particular turnover easily. So now very important thing is there has been no change in the threshold limit for the service providers. Person providing the service need to register if their aggregate turnover exceed rupees 20 lakhs for normal category of states and 10 lakhs for the special category of states. What it means, student? इसका मतलब है कि थ्रेशोल्ड लिमिट 40 lakhs हो गया है, बट किसके लिए? ओनली टू द सप्लायर ऑफ गुड्स. ओके, गुड्स सप्लाई करते हैं तो threshold limit is 40 lakhs, and if you are the provider of the service, then threshold limit is 20 lakhs only. ठीक है, in simple words 31st March 2019 तक जो लिमिट था वो 20 लाख का था सबके लिए, वेदर इट इज अ सप्लायर ऑफ गुड्स और सर्विस प्रोवाइडर. बट ये लिमिट चेंज हुआ, लोगों ने बोला कि अभी 20 लाख का 40 लाख हो गया है, बट 40 लाख सबके लिए नहीं हुआ है. 40 लाख सिर्फ किसके लिए हुआ है? those who are supplying only goods, सिर्फ गुड्स सप्लाई कर रहे हैं तो उनके लिए वो लिमिट 40 लाख का है, बट प्रोवाइडर ऑफ द सर्विस आर स्टिल हैविंग द लिमिट ऑफ 20 lakhs. ये बराबर ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है फॉर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू एज वेल एज व्हेन यू आर गाइडिंग एनीवन फॉर द रजिस्ट्रेशन. किसी को रजिस्ट्रेशन के लिए गाइड करते हो उसके लिए भी और तुम्हारे एग्जामिनेशन के लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है. नाउ एग्रीगेट टर्नओवर मतलब टोटल टर्नओवर जो 20 लाख और 40 लाख की हमने बात की, उसमें क्या क्या आएगा और क्या क्या नहीं आएगा. सो the first thing, aggregate turnover as per section 2 subsection 6 includes all taxable supply. ठीक है, जो भी गुड्स के ऊपर टैक्स लगता है और वो तुम सप्लाई करते हो, ऑल एग्जम्प्ट सप्लाईज भी आएगा. एग्जम्प्ट सप्लाई मतलब तुम बोलोगे कि हम एग्रीकल्चर प्रोडक्ट भी सप्लाई करते हैं और
टैक्सेबल प्रोडक्ट भी सप्लाई करते हैं, तो फॉर रजिस्ट्रेशन कंसिडर ओनली द टैक्सेबल सप्लाई? नो, इट्स गोइंग टू बी combined both the things, that is taxable as well as exempt. एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ, अगर तुम एक्सपोर्ट करते हो, नो डाउट इट इज एट अ नील रेट जीएसटी, बट स्टिल इट इज ऑल्सो विद द पार्ट ऑफ द योर turnover. And interstate supply, any interstate supply is also be the part of the your aggregate turnover, whether taxable or exempt doesn't matter. Aggregate, next is aggregate turnover of supply of goods or services of both computed for the supplier having the same permanent account on the principle of one PAN one person. ये बराबर समझ लो, अगर समझो कि मेरा दो तीन बिजनेस है, तो मैं बोलूंगा कि तीनों बिजनेस के मेरा लिमिट अलग अलग कैलकुलेट करो. सपोज आई एम द taking the lectures, suppose I am selling the books, suppose I am having one shop. Okay, तो मेरे तीन बिजनेस है. एक मेरा शॉप है जिसके ऊपर जिस जिधर मैं कोई बिजनेस करता हूँ फूड प्रोडक्ट का से. नेक्स्ट मेरा बिजनेस है, मैं कुछ बुक्स सेल करता हूँ. और थर्ड मेरा बिजनेस है पढ़ाने का. ओके, आई एम टीचिंग एंड कलेक्टिंग द फीस. सो कैन आई से थ्रेशोल्ड लिमिट, मतलब ये जो 20 लाख और 40 लाख का जो लिमिट है, उसके लिए तुम तीनों बिजनेस को अलग अलग कंसीडर करो. तो बोलेंगे नहीं, आपका एक पैन कार्ड है, सब बिजनेस का मिला के जो टर्नओवर होगा दैट इज कंसिडर्ड एज अ होल टर्नओवर. ओके, नेक्स्ट इज फॉर द होल ऑफ द इंडिया टेकन टुगेदर. मतलब अगर मेरा बिजनेस अलग अलग स्टेट्स में है, तो डेफिनेटली पहली बात समझ लो, ईच एंड एवरी स्टेट में मेरे को अलग अलग रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, turnover of the all states are collected together for the consideration of the threshold limit. मैं बोलूंगा मेरा महाराष्ट्र में 5 लाख का बिजनेस है, पंजाब में 10 लाख का बिजनेस है, राजस्थान में 6 लाख का बिजनेस है, तमिलनाडु में 8 लाख का बिजनेस है. तो कहीं पे भी मेरा 20 लाख के ऊपर तो बिजनेस है ही नहीं. सो आई एम नॉट लायबल टू रजिस्टर्ड. तो बोलेंगे सॉरी, ऐसा नहीं चलेगा. तुम्हारा एक ही पैन कार्ड के ऊपर तुम ये सारे स्टेट में रजिस्टर्ड हो, देन वी आर टेकिंग द टोटल ऑफ ऑल दो स्टेट्स. मतलब 5 लाख, 10 लाख, 6 लाख, 8 लाख, ये सब मिला के अगर तुम्हारा 40 लाख या 20 लाख वट एवर विद एप्लीकेबल अगर होता है, यू आर लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन. नेक्स्ट इज विद रेफरेंस टू फाइनेंशियल ईयर, दैट इज अप्रैल टू मार्च. ये बोलने की जरूरत ना हो तुमको कि जो भी एनुअल टर्नओवर या ईयरली टर्नओवर बोला जाता है वो ईयर कब चालू होगा? 1 अप्रैल टू 31 मार्च. ओके, नेक्स्ट इज द वैल्यू ऑफ एग्रीगेट टर्नओवर एक्सक्लूड. कौन सी चीजें टर्नओवर में इंक्लूड नहीं होगी? द फर्स्ट इज सेंट्रल टैक्स, state tax, union territory tax, integrated tax, and cess. The value of inward supply on which tax is payable by the person on reverse charge basis. Okay, so these are not a part of the turnover. अगर कोई भी टैक्स मेरे सप्लाई में इंक्लूड है, then it is not a part of the turnover. And जिसके ऊपर मैं लाइबल नहीं हूं, आई एम नॉट लाइबल टू पे द टैक्स, बट द service receiver or the person who is purchasing the goods from me is liable for tax under the reverse charge mechanism, then that sale is not a part of my turnover. Next is the wide explanation to the section 22. The aggregate turnovers includes all supply made by the taxable person
on his own account or supplies made on behalf of all his principal, or in case of principal the supply of goods by the registered job worker after completion of the job work. It means that अगर मैंने कोई भी goods या सर्विस प्रोवाइड की है ऑन बिहाफ ऑफ अदर्स, किसी, फॉर एग्जांपल प्रिंसिपल एंड एजेंट, आई एम एजेंट एंड समवन इज द प्रिंसिपल, तो अगर मैं दो टाइप की सर्विस प्रोवाइड करता हूँ, एक मेरी ओन और एक ऑन बिहाफ ऑफ अदर पर्सन, मतलब मैं मेरा भी काम करता हूँ और दूसरे के लिए भी काम करता हूँ, तो मैं बोलूंगा कि एग्रीगेट सप्लाई में सिर्फ मैंने जो काम किया है उसी को कंसिडर किया जाए। बोलेंगे नहीं, वॉट एवर बी यू डन फॉर अदर पर्सन इज ऑल्सो बी द पार्ट ऑफ द टर्न ओवर। ओके, सो और इवन दो जॉब वर्क के ऊपर मैं अगर गुड्स लेता हूँ या देता हूँ, सो दैट इज ऑल्सो बी द कंसिडर्ड एज अ पार्ट ऑफ द टर्नओवर। नाउ ये थ्रेशोल्ड लिमिट जो 20 लाख और 40 लाख बताया वो किसको एप्लीकेबल नहीं है, मतलब ये वो लोग हैं जिनका टर्नओवर 1 रुपया भी हो, या फिर इफ दे आर रजिस्टर्ड अंडर द पर्टिकुलर कैटेगरी they need to register under the GST without considering the limit of turnover। इसका मतलब इनका टर्नओवर का लिमिट के देखा नहीं जाएगा रजिस्ट्रेशन के लिए। Okay, so who are they? First, the person making the interstate taxable supply। अगर कोई एक स्टेट से दूसरे स्टेट में सप्लाई करता है, 1 रुपए का भी अगर उसने ऐसा सप्लाई किया, ही इज लाइबल फॉर registration even though his supply is not more than 20 or 40 lakhs, whatever be the cases। नेक्स्ट इज पर्सन रिक्वायर्ड टू पे टैक्स अंडर द रिवर्स चार्ज। रिवर्स चार्ज तुमको ऑलरेडी पता है, व्हाट इज द रिवर्स चार्ज? द टैक्स पेएबल बाय द recipient of the goods or services, generally those who are supplying the goods or services are liable to pay the tax, but in a reverse charge mechanism the person who is buying or who is taking the service are liable to pay the tax. So in those cases, if I am liable to pay tax under the reverse charge, I need to register without considering that 20 lakhs and 40 lakhs limit। कैजुअल एंड नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन, ये बराबर समझ लो, who is the casual or non-resident tax person and how they are liable to register under the GST। सपोज एक एनआरआई बोलता है कि मैं यहाँ पे 3 महीने के लिए आऊंगा और एक बिजनेस करूंगा, तो मेरे को जीएसटी लेने की जरूरत है क्या? तो उसको ऐसा नहीं बोलेंगे कि भाई तेरा टर्नओवर 40 लाख, या इफ यू आर द सर्विस प्रोवाइडर तो तेरा टर्नओवर 20 लाख के ऊपर जाएगा तो ही तू, तेरे को रजिस्ट्रेशन की जरूरत है। नो, यू आर एनआरआई, you required to register compulsory under the GST if you want to do a business in India, even though your turnover is less than threshold limit। सेम वे कैजुअल टैक्स पेयर कौन है? सपोज कि आई एम रजिस्टर्ड पर्सन एट महाराष्ट्र, मैं महाराष्ट्र में रजिस्टर्ड हूँ, बट अगर मेरे को गुजरात का एक कॉन्ट्रैक्ट मिला है एंड आई एम वेरी श्योर दैट this is the one and only one contract which I got and there is no any chance or very few chance to get the same kind of contract आउट ऑफ द स्टेट। मैं महाराष्ट्र के बाहर काम नहीं करता हूँ, बट एक आध बार अगर मेरे को महाराष्ट्र के बाहर काम मिल गया, से गुजरात में मिल गया, तो मैं वो काम तो करूंगा, बट मैं वो स्टेट का जीएसटी नंबर नहीं लूंगा। मैं बोलूंगा आई विल टेक द जीएसटी number on temporary basis, so that is called a casual taxpayer। So casual taxpayer is also liable to register even though there is a
no limit of turnover. Next is e-commerce operator, okay, or those who require to collect TDS. पहले before GST there are lot of complication in e-commerce business. मतलब ये Amazon, Flipkart, Maitra, etc. These sites are uh, having lots of problem for the uh, our Indian businessmen. Why? Because they are not paying the state tax. वो वैट पेड नहीं करते थे और उसके ऊपर बहुत सारे लिटिगेशंस हो गए, बहुत सारे कंफ्यूजन्स थे, बहुत सारे केस हो गए, बहुत सारे डिस्प्यूट्स हुए. बट as soon as the GST is introduced in India, it's very clearly written in the GST that every e-commerce operator, whether it is the Amazon, Flipkart, Uber, Ola, Swiggy, Zomato, कोई भी बंदा अगर ई कॉमर्स बिजनेस करता है उसको कंपलसरी जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना है और उसने अपना टर्नओवर एक लिमिट तक क्रॉस होने की राह नहीं देखनी है. सो ऑल ई कॉमर्स ऑपरेटर and those who are liable to collect the TDS are required to register under the GST. Next, person supplying goods through e-commerce operator. As you know, अगर मेरे को कोई भी ई कॉमर्स साइट के ऊपर रजिस्ट्रेशन चाहिए या उसका मेरे को वेंडर बनना है, देन आई कंपल्सरी रिक्वायर्ड द जीएसटी. एज यू नो, Amazon या फ्लिपकार्ट उसके पास अपना खुद का एक भी प्रोडक्ट नहीं है. एक भी प्रोडक्ट नहीं है, ना उनका प्रोडक्शन है, ना उनका कोई प्रोडक्ट है खुद का जो सेल कर दे. तो दे आर ओनली द कॉन्टेक्ट बिटवीन द बायर एंड सेलर. मतलब एक सेलर बैठा है कहीं, वो अपना प्रोडक्ट उसके साइट पे शो करता है, बायर को पसंद आता है, वो ऑर्डर दे देता है. तो वही जो सेलर कहीं पे बैठा है वहीं से बायर को वो गुड्स सेंड कर देता है. सो हियर द seller who want to register on e-commerce site must have the GST number. Without GST number आप वो साइट पे रजिस्टर्ड नहीं हो सकते. नेक्स्ट, person making supplies on behalf of registered taxable person. मतलब अगर मैं किसी का गुड सप्लाई कर रहा हूँ, मतलब मैं किसी का एजेंट हूँ और मेरा जो प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल मतलब जिसका मैं गुड सप्लाई करता हूँ, वो ऑलरेडी रजिस्टर्ड है जीएसटी में, तो मेरे को भी कंपलसरी रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा. देन इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर मीन्स they are providing service from different places but they are uh, claiming the input at one place. For example, the bank is providing the service from their branch. तो ये अलग अलग ब्रांच से क्या करते हैं, जीएसटी कलेक्ट करते हैं. बट ये जीएसटी कलेक्ट करने के बाद जो उनका क्लेम करना है, आईटीसी इनपुट टैक्स क्रेडिट जब क्लेम करने की बात आती है तब वो हेड ऑफिस करता है. तो हेड ऑफिस तो कोई बिजनेस करता नहीं है, जीएसटी उसको ना आता है ना जाता है, वो सारे कहाँ से आते हैं, ब्रांच के आते हैं. तो जब ब्रांच का कलेक्टिव जीएसटी डील करता है हेड ऑफिस, दैट इज कॉल्ड अ इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर. तो अगर ऐसा तुमको दूसरे ब्रांचेस या डिपार्टमेंट या अलग अलग जगह पे तुमको स्टोर खोल के अगर इनपुट टैक्स क्रेडिट लेना है, देन यू मस्ट बी रजिस्टर्ड अंडर द जीएसटी विदाउट कंसिडरिंग द थ्रेशोल्ड लिमिट. Next and last one is every person supplying online information and database access or retrieval service from a place outside India to a person in India other than a registered पर्सन. मतलब मैं
इंडिया में रजिस्टर्ड नहीं हूँ, बट मैं ऐसे कंपनी से या फिर ऐसे बंदे से कोई सर्विस लेता हूँ, ऑनलाइन सर्विस लेता हूँ, ठीक है, देन ऑल्सो आई एम रिक्वायर्ड टू रजिस्टर। अभी ये सबसे बड़ा कंफ्यूजन था जीएसटी के पहले और इवन आफ्टर द जीएसटी, बट इट्स क्लियर्ड बाय द जीएसटी काउंसिल कि सपोज कि मैं अमेरिका से एक सर्विस लेता हूँ और ऑस्ट्रेलिया में वो सर्विस प्रोवाइड करता हूँ और मैं बोलता हूँ कि सर आई एम नॉट रजिस्टर्ड अंडर द जीएसटी, मैंने सर्विस आउटसाइड से लिया, मैंने सर्विस मतलब एक डेटा लिया और वो डेटा मैंने ऑनलाइन ही सप्लाई कर दिया, कुछ ऑफलाइन नहीं आया, उन्होंने ऑनलाइन कुछ चीजें मेरे को भेजी, मैंने वो ऑनलाइन चीजें दूसरे लोगों को भेज दी, देन ऑल्सो आई एम required to registered under the GST. Next, person not liable for registration, ऐसे भी लोग हैं जिनको जीएसटी के अंडर रजिस्टर्ड करने की जरूरत नहीं है। तो वो कौन है? एनी पर्सन एंगेज एक्सक्लूसिवली, वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, एक्सक्लूसिवली इन द बिजनेस ऑफ सप्लाइंग goods or services or both that are not liable to tax or wholly exempt for the tax under the CGST Act और IGST Act। मतलब कौन से प्रोडक्ट है जो आउट ऑफ नेट ऑफ द जीएसटी है, दैट इज द फाइव पेट्रोलियम प्रोडक्ट एंड लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, ह्यूमन कंजम्पशन के लिए जो लिकर है दैट इज द आउट ऑफ प्रीव्यू ऑफ द जीएसटी। तो अगर कोई भी सप्लायर एक्सक्लूसिवली मतलब सिर्फ यही चीजों की सप्लाई करता है, मतलब सिर्फ वो लीकर सेल करता है फॉर ह्यूमन कंजम्पशन और पेट्रोलियम प्रोडक्ट ही सेल करता है, देन ही इज नॉट लाइबल फॉर रजिस्ट्रेशन। बट अगर मैं पेट्रोल सप्लाई करता हूँ और साथ में कोई दूसरा टैक्सेबल गुड्स भी सप्लाई करता हूँ या सर्विस सप्लाई करता हूँ, देन आई एम लाइबल बिकॉज आई एम गिविंग द कंबाइंड थिंग। सो इट्स नॉट एक्सक्लूसिवली, सिर्फ एक ही बिजनेस करूंगा तो ही मेरे को एग्जम्पशन है, अदरवाइज नहीं। नेक्स्ट, वेरी इंपॉर्टेंट एज यूजुअल, an agriculturist to the extent of supply of produce out of the cultivation of the land, मतलब all farmers or the agriculturists are not liable to register for their agriculture product, but only those who are the actual tiller of the land or who are the actual agriculturist। अगर मैं बोलूं कि मेरा जमीन है, वहां पे मैं एग्रीकल्चर करता हूँ, उसका प्रोडक्ट यहाँ लाता हूँ और यहाँ मैं सेल करता हूँ, देन आई एम नॉट अ फार्मर, मैं फार्मर नहीं हूँ, देन आई एम लाइबल फॉर रजिस्ट्रेशन। एंड इफ आई एम सेलिंग एनी पैक्ड प्रोडक्ट, पैक्ड मतलब अगर मैं चावल, एग्रीकल्चर गुड्स आर आउट ऑफ द जीएसटी, बट इफ आई एम सेलिंग एनीथिंग इन पैक्ड पैकेट, पैकेट में सील करके अगर बेच रहा हूँ, देन इट इज सब्जेक्ट टू जीएसटी। मतलब अगर तुम चावल लूज लोगे, अगर तुम कोई भी किराना वाले के पास जाके चावल लोगे जो पैक्ड नहीं है, देन यू आर नॉट लाइबल टू पे अ जीएसटी ऑन दैट। बट अगर तुम से एनी दिल्ली ब्रांड या एनी ब्रांडेड rice, yeah, atta, etc. If you are buying, then you required to pay the GST on it. Okay, and there are some class of uh, people who particularly mentioned by government which are not liable for the registration. The first is advocate, including the senior advocate. उसकी भी कंडीशंस है, एडवोकेट को क्यों जीएसटी में नहीं शामिल कर दिया गया, बिकॉज if suppose I want a service of the advocate and if he is charging the 1 lakh
and above the GST is charging the say 20% of GST, then I need to pay the 1,20,000 rupees. तो ये महंगा हो जाएगा. So advocates are not liable to register under the GST. But if advocate is providing service to the company, then they are liable for registration. Next is individual sponsorship service providers including players. अगर अपने कोई प्लेयर को कोई स्पॉन्सरशिप देता है, देन वो रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं है. दिस इज फॉर द एनकरेजिंग द स्पॉन्सरशिप इन इंडिया. Next is supplier whose all supplies are taxable under the reverse charge. अगर मैं ऐसा सप्लायर हूँ जिसका सारा टैक्स रिवर्स चार्ज पे वो सामने वाला भरने वाला है, तो मेरे को रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत नहीं है. रजिस्ट्रेशन कौन लेगा? द पर्सन हु इज लायबल टू पे द टैक्स ऑन रिवर्स चार्ज. Look, this is the simple example of the registration. As I told you, one registration for one state. Okay, हर state में एक registration होगा. So if even I am doing the business at Maharashtra and Gujarat, then I need to take the two registration. One is in Maharashtra and second is in Gujarat. Okay, so companies, big companies, private limited companies or public companies, those who are doing the business at whole over India, they required that 29 registration in each and every state. Okay, so there are huge scope for the accountant if he is knowing or she is knowing the provisions of the GST. GST का प्रोविजन हर स्टेट में अभी सेम है, स्टेट टू स्टेट डिफरेंस नहीं है. तो यहीं पे बैठ के हम पूरे इंडिया का टैक्सेशन कर सकते हैं. सो दिस इज द most advantageous thing that you have to take for the employment purpose. Okay, uh, process of registration we will see in next lecture, not in this lecture. So here uh, we are stopping